Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Initiate some lecture or something like that, devotees always have a habit to appreciate us. And at that time, like a crane bird, right? हंस की तरह वो अपनी बुराइयों को नजरअंदाज करते हैं, and they only talk about the good qualities. But because we can see ourselves in the mirror, we know where we stand. So we know we should ignore the uh, appreciation and we should focus on our bad points so that we can improve. So in this context, I always remember dog as an animal. तो एक कुत्ता जो होता है, तो जब एक कुत्ता एक कुछ अच्छा काम करता है तो मालिक उसे बहुत प्यार करता है, एंड द ओनर then happily talks about the achievements of the dog to his neighbors and friends and relatives, and then they also appreciate the dog. But the dog is so fortunate that he doesn't understand what the humans are speaking, because of which he does not become proud about whatever he has done. But we humans are unfortunate that we do not get appreciated by dogs whose language we do not understand, but we always get appreciated by humans. And because we understand their language, we become proud about it. So uh, the point is the dog has not achieved anything. I mean, it is not the dog's achievement, because डॉग को कुत्ते को एक ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग की वजह से वो कुछ कर पाता है. बिकॉज अगर एक रास्ते का कुत्ता होगा तो वो रास्ते का कुत्ता वो नहीं कर पाएगा जो एक घर का ट्रेन किया हुआ कुत्ता कर पाता है. तो कुत्ते तो दोनों सेम ही है, एक रास्ते पे एक घर पे है, पर द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज द ट्रेनिंग. एंड ये जो ट्रेनिंग जो रास्ते के कुत्ते को नहीं मिली थी इसके लिए वो नहीं कर पाया, और जो घर के कुत्ते को मिली थी उसके लिए वो कर पाया. तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ ट्रेनिंग ही है. सो इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग that the dog is able to do something, not because of his own internal caliber. Similarly, हम लोग जब यहाँ lectures के लिए बैठते हैं and when devotees appreciate, I constantly remind myself that I am a dog. And because my Shiksha gurus like Gopi Manohar Prabhuji and various other Prabhujis have given me the training, that's why today I am in a position to speak a few words on it. So Gopi Manohar Prabhuji has a habit of never appreciating himself and always appreciating others. But he has not introduced you that he is my Shiksha Guru and he is one of the primary reasons why I am in Krishna consciousness. एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब 2003 में जब प्रभु जी यहाँ दुबई में थे तो ऑफिस में उनको दोपहर को 1 से 2 बजे एक ब्रेक होता था, और प्रभु जी का वो समय होता था या तो थोड़ा रेस्ट करें या तो थोड़ा चैंटिंग करें. और उस समय में उनको मैं इतने सारे फोन करके इतने सारे सवाल कर करके इतना परेशान कर करके प्रभु जी फिर भी पेशेंटली हमारे सारे सवालों के जवाब दे रहे थे. And because of those clarifications and given in a very nice, humble manner, that is the reason we could develop some interest in Krishna consciousness. So all the credit for whatever we have achieved, in addition to Krishna and Guru's mercy and Prabhupada's mercy, it goes to Gopi Manohar Prabhuji. So thank you so much, Prabhuji. ये सब भूल गया था मैं प्रभु. प्रभु आप अच्छा करते हो, हमेशा भूल ही जाते हो, बट हमें याद रखना चाहिए. थैंक यू सो मच प्रभु जी. प्रभु कैसा करना है? Shall we read the verses, purport, everything, or shall we read only the verses and translation and we go ahead? How do you do generally? Yeah, you can take verses translation and you can take off the lecture. Okay, Prabhu. Okay.
तो इसमें स्क्रीन शेयर करूं मैं वर्स रिलेटेड। भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ट्रांसलेशन: परफॉर्म योर ड्यूटी equipoised, O Arjun, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग समझते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड सो फार। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, पर अर्जुन ने 5 सवाल पूछे थे। 4 पहले अध्याय में, एक दूसरे अध्याय में 5वां प्रश्न। उन पहले 3-4 प्रश्नों के उत्तर कर्मकांड रिलेटेड थे, तो भगवान ने उनको 11वें श्लोक से लेके 37वें श्लोक तक उसका उत्तर दे दिया। और अभी बिकॉज अर्जुन ने जो सवाल पूछे थे ये एक शरीर के माध्यम रिलेटेड सवाल थे, मतलब एट द लेवल ऑफ अ बॉडी, विच मीन्स प्रभु हिंदी ही करना पड़ेगा या इंग्लिश इज ओके? बिकॉज थोड़ा हिंदी में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। ओके प्रभु, ओके व्हाट आर यू कंफर्टेबल? ओके प्रभु, बीच बीच में हिंदी ट्राई करूंगा मैं, पर इंग्लिश थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। So until the verse 37, Krishna answered his questions, and the one question which he purposely did not answer, at least directly, was the indecision related question, 5वां प्रश्न जो दूसरे अध्याय में पूछा गया था। तो हुआ क्या, तो जो अर्जुन के सवाल एट द लेवल ऑफ बॉडी थे कि शरीर को दुख होगा या शरीर को यातना होगी या शरीर को आनंद मिलेगा नहीं, तो ये सब क्यों करना है, ये फाइटिंग क्यों करनी है? दिस वाज हिज मेन रीजन, एंड बेस्ड ऑन दिस वन हिज क्वेश्चंस वेर ही हैड आस्क्ड। तो दो सेम क्वेश्चंस कृष्णा आंसर्ड एट द सेम लेवल टू अर्जुन। अभी बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट भगवद गीता वाज मेंट फॉर, इसके लिए 2.38 एंड 39 में कृष्णा टेक्स अ यू टर्न। और ये यू टर्न मतलब ऐसा है कि अभी तक मैं तुमको बोल रहा था कि जित्वा वा भोक्ष से महिम हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, आप मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वहां पे आनंद भोगने को मिलेगा, या आप अगर यहाँ पे जीतोगे तो आपको भोक्ष से महिम मतलब आपको पृथ्वी का उपभोग करने मिलेगा। तो दोनों तरीके से फायदा ही है, और ये सिर्फ आप ही को नहीं, यहाँ पे युद्ध पे whoever is assembled on the battlefield, everybody will get the same benefit. So now this was a win-win situation. Win-win मतलब दोनों पार्टियों को दोनों आउटकम्स ऑफ द वॉर पे बेनिफिट है, किसी को भी नुकसान नहीं है। दिस इज अ विन-विन सिचुएशन। But despite this being a win-win situation, Krishna is now telling him that sukha dukhe same krutva labha labho jaya jayo, meaning it doesn't matter whether you are going to get happiness or distress or profit or loss or victory or defeat. आपको युद्ध करना है, that is because you are a kshatriya and it is your duty to do yuddha. That's why you have to do it, irrespective of what the expected outcome could be. एंड इसके बाद कृष्णा अभी उसको बोलते हैं कि मैंने अब तक जो बताया आपको, इट वाज अ काइंड ऑफ अ प्रिलिमिनरी नॉलेज, मीनिंग ये नॉलेज से इतना आपको बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जन्म मृत्यु के बंधन से आप निकल नहीं पाओगे। एंड क्यों नहीं निकल पाओगे? बिकॉज दैट नॉलेज डज नॉट हैव दैट ऑब्जेक्टिव। मीनिंग हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे प्राइमरी सीखना है, सेकेंडरी सीखना है, ग्रेजुएशन करना है, फिर बाद में डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी बनना है, तो एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हमको समझो स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो ये स्कूल का नॉलेज
फायदा नहीं होगा, तो स्कूल का नॉलेज के बाद हमें और कुछ करना पड़ेगा। तो हर एक जो कोर्स होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव होता है मैकेनिकल नॉलेज लेना, तो हर एक नॉलेज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो भगवान ने जो पहले बताया, उस नॉलेज का ऑब्जेक्टिव यही है कि भोगना और आनंद लेना, यही उसका ऑब्जेक्टिव है, जिसे हम कर्मकांड बोलते हैं। कर्मकांड मतलब क्या है कि जो स्क्रिप्चर्स में लिखाया है उस तरीके से अपने कर्म करना, पर फल की फल की आशाओं से, फल की इच्छाओं से उसको कर्म करना है। तो भगवान अभी बोलते हैं कि कर्म बंधम प्रहास्यसि। हाँ, कर्म बंधम मतलब कर्म करते हो और बंधन में अटक जाते हो, तो प्रहास्यसि मतलब आप इससे छूट पाओगे। किससे छूट पाओगे? कर्म बंध से। और कैसे छूट पाओगे? तो वो बोलते हैं कि एषा ते भीता सांख्य बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। तो ये जो श्लोक है, इसमें योग, ये जो शब्द है, इसमें भगवत गीता में ये पहली बार आ गया है, योग ये शब्द। और भगवान बोलते हैं कि मैंने अभी तक आपको एनालिटिकल स्टडी से बताया, मतलब इसको क्यों करना है, उसको क्यों नहीं करना है, इससे करेंगे तो क्या फायदा है, उससे करेगा तो क्या नुकसान है वगैरह, मतलब फायदा नुकसान इस एंगल से किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सांख्य योग गलत है। सांख्य योग और प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जो आगे जो बताया है बुद्धि योग भक्ति योग वो सेम ही है, पर भक्ति योग डायरेक्ट है। सांख्य योग से क्या होता है कि जैसे हम लोग ने इधर कपिल मुनि ने देवहूति को जो उपदेश किया है तीसरे स्कंध में, वो भी सांख्य योग ही है। तो सांख्य योग में पूरा एनालिसिस बोलते हैं। एनालिसिस मतलब क्या, कुछ बड़ा जो होता है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं और हर एक भाग इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, और उस स्टडी का जो कंक्लूजन होता है अलग अलग भागों का, उसको बाद में वापस स्टडी करके एक जो बड़ा कंक्लूजन है वो बड़ा कंक्लूजन डिराइव करते हैं। तो अभी हमें एक घर लेना रहेगा, समझो 4 बेडरूम अपार्टमेंट लेना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, घर का एनालिसिस करने के पहले एक छोटे छोटे जो रूम्स होते हैं, किचन होगा, हॉल होगा, बाथरूम्स हो गए, बेडरूम्स हो गए, इन लोग का एनालिसिस करेंगे और बोलेंगे कि हाँ ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड, दैट मीन्स द हाउस इज गुड। तो इंडिविजुअल एनालिसिस करने के बाद घर का एनालिसिस करके हम लोग ने कंक्लूजन पे आ गया है। वैसे ही सांख्य योग है, 25 मटेरियल एलिमेंट्स जो है इंक्लूडिंग टाइम, उनका इंडिविजुअल एनालिसिस करके एक कंक्लूजन आएगा, उन सारे कंक्लूजन्स को मिला के और एक कंक्लूजन आएगा, वो कंक्लूजन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सांख्य योग। बट भक्ति योग डायरेक्ट है, कि भले ही दोनों का डेस्टिनेशन सेम है बट रास्ता थोड़ा सा अलग है, और उसके वजह से यू माइट हैव वन कुड बी अ शॉर्टर पाथ, वन कुड बी अ लॉन्गर पाथ। और अभी भगवान क्या बोलते हैं कि मैं आपको बुद्धि योग के बारे में सिखा रहा हूं। अभी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, इट हैज रेलेवेंस अंटिल द वर्स नंबर 53 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बुद्धि योग। भगवान चाहते थे तो भक्ति योग डायरेक्टली बोल सकते थे, भक्ति क्या कर्म योग बोल सकते थे, लेकिन भगवान ने बुद्धि योग इस शब्द का उपयोग किया हुआ है। तो नाउ व्हाट डज दिस मीन, ये हम लोग देखते हैं अभी। तो आप देखेंगे कि पूरे भगवत गीता में 3 अलग अलग योग पद्धतियों के बारे में बताया गया है। 4, सॉरी 3 नहीं। तो कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और भक्ति योग है। यहाँ पे बुद्धि योग कहीं आता नहीं, बट फिर भी भगवान यहाँ पे बुद्धि योग इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? आप में से कोई बता पाएगा व्हाट डज बुद्धि योग मीन? हरे कृष्णा। Yeah. Please raise your hands if somebody wants to answer. पूछ रहे हैं बुद्धि योग का मतलब क्या है? ओके फाइन, थैंक यू। Somebody has raised hand. तो मुझे ना यहाँ पे दिख वो Yeah, Sujata. Yes, Sujata. हरे कृष्ण मुझे दंडवत प्रणाम। डिवोशनल सर्विस। ओके, या दैट्स करेक्ट। उसका और डिटेल में मीनिंग आप बता पाएंगे माता जी? नो प्रभु जी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बुद्धि योग जो है एक जेनेरिक टर्म है। ओके,
which is meant to address karma yoga as well as bhakti yoga. तो हम लोग बोलते हैं ना कि कोई बाहर वाला अगर हमारे घर पे आके पूछता है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, तो हम लोग बोलते हैं हाँ स्कूल में जाते हैं. तो अभी स्कूल इज अ जेनेरिक टर्म. अगर डिटेल में पूछता है कोई बंदा, हाँ स्कूल में, लेकिन कौन सी कक्षा में, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई वो प्राइमरी में सीख रहा है और बड़े वाला सेकेंडरी में सीख रहा है, या ग्रेड 4 में है और दूसरा ग्रेड 8 में है. तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया. तो बुद्धि योग इज ऑल्सो लाइक अ जेनरिक टर्म विच एड्रेसेस भक्ति योग एंड कर्म योग. तो कर्म योग कभी होता है, तो हम जब प्रिलिमिनरी लेवल पे होते हैं भक्ति के मार्ग पे, तब हमारी भक्ति भगवान के लिए काफी कम होती है. मीनिंग हम लोग कर्म कांड ही अभी भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर व्हेन वी डू डिवोशनल सर्विस विथ रिस्पेक्ट टू चैंटिंग एंड डीटी वर्शिप एंड ऑल. अदरवाइज फिर भी हम लोग पाप और पुण्य से डरते ही हैं. हमारी भक्ति उतनी भगवान के लिए है नहीं. हम लोग सीख रहे हैं कि भाई खुद के लिए कर्म मत करो, भगवान के लिए करो. पर ये सिर्फ नॉलेज हो गया, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारे में अभी उतना आया नहीं है. तो एट दिस लेवल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग is not pure bhakti yoga, it is karma yoga. But when we advance to the level of doing the karma for giving the result to Krishna in the mood of love, in the mood of devotional service, तो उसे भक्ति योग कहा जाता है. But in both the cases it is buddhi yoga only. Why buddhi yoga? Because you are applying your intelligence while performing the yoga. और what intelligence are we applying? तो अभी हमें पता चलता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दो वर्ड्स होते हैं, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स. तो स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, टैक्टिक्स होते हैं टू अचीव द स्ट्रैटेजिक गोल. एक छोटी छोटी चीजें जो करते हैं कंपनियां, तो एक मार्केटिंग बनाएंगे एक के लिए, एक या फिर सेल्स के लिए कुछ बनाएंगे. ऐसे एक कंपनी की बड़ी स्ट्रैटेजी होती है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी चीजें हम लोग करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें कृष्णा के पास जाना है. तो ये हमारी स्ट्रैटेजी हो गई. अभी जब हम लोग इंटेलिजेंस यूज करेंगे तो हम लोग ऐसे कभी कभी डिसीजन पॉइंट्स पे आ जाएंगे, वेर इन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर दिस पर्टिकुलर एक्शन एम आई सपोज टू डू इट और एम आई नॉट सपोज टू डू इट. तो वो टाइम पे when we keep our objective focused on the long term, then we will understand that short term में तो मुझे benefit मिलेगा, but long term में मुझे नुकसान है. And that is where we are applying our intelligence to say कि नहीं, because short term में benefit है, long term में loss है, इसके लिए मुझे करना नहीं है. That means we are giving importance to the long term goal. तो that is when we are actually applying our intelligence. So similarly, जब हम लोग भक्ति करते हैं तो देयर ऑल्सो वी अप्लाई इंटेलिजेंस टू से कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे बोला कि यार आपको एक झूठ बोलना है तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे करके. तो भाई तो ये क्वेश्चन है मेरे पास कि भाई मैं क्यों झूठ बोलूं, 10 लाख मिल रहे हैं पर इस 10 लाख से मुझे ज्यादा फायदा हो गया, नुकसान होगा. तो जब मुझे पता चलता है कि मैं एक झूठ के वजह से भले ही 10 लाख मिलेंगे पर शायद मैं बाद में पकड़ा जाऊंगा और मुझे सजा हो जाएगी और मेरा भक्ति मार्ग भी टूट जाएगा, तो ये लॉन्ग टर्म में होने वाला नुकसान है. तो अब हम लोग वहां पे इंटेलिजेंस अप्लाई करके डिसीजन लेते हैं कि टू डू इट और नॉट टू डू इट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बुद्धि योग. बिकॉज ये जो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बाय अप्लाइंग इंटेलिजेंस वी आर एबल टू से कि मुझे मटीरियल बेनिफिट जो मिल रहा है आज कृष्णा कॉन्शियस में ना आके, वो मटेरियल बेनिफिट मुझे सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट है बट लॉन्ग टर्म में नुकसान है. सो देयर वी आर अप्लाइंग अवर इंटेलिजेंस टू से कि नहीं, मुझे मटेरियल बेनिफिट नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए. इसके लिए बाय अप्लाइंग इंटेलिजेंस वी आर एक्चुअली डूइंग दिस योगा. दैट्स व्हाई कृष्णा इज सेइंग इट इज बुद्धि योग. एंड इन द प्रिलिमिनरी स्टेज इट इज कर्म योग, इन द एडवांस स्टेज इट इज एक्चुअली भक्ति योग. तो अभी आफ्टर speaking this one, Krishna actually starts talking about the buddhi yoga of this, meaning this particular topic. Now in the whole of Bhagavad Gita you will see Krishna has applied some kind of pattern in the verses. So in some cases he has talked about a concept,
और कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो क्या फायदा है, कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करोगे तो क्या नुकसान है, इसके बारे में बताया है। फिर आगे जाके उसने जो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं उनको उनके बारे में बताया है, और जो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते उनके बारे में बताया है। एंड दिस पैटर्न ही हैज कैरीड ओवर इन एवरी डिफरेंट सेक्शन ऑफ भगवत गीता। तो अभी क्या किया है उन्होंने, वो जो बुद्धि योग जो है उस बुद्धि योग के बारे में बताना चालू किया है, और इसके लिए नाउ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पाथ ऑफ बुद्धि योग इज बीइंग डन हियर नाउ। बिकॉज पहले क्या था, अंटिल वर्स नंबर 37, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, ये करो तो ये फल मिलेगा, वो करो तो वो फल मिलेगा। दिस इज द बार्टरिंग सिस्टम दैट कृष्णा वाज टॉकिंग अबाउट। आप ये करो ये फल मिलेगा, वो करो वो फल मिलेगा। बट यहाँ पे अभी ही इज टॉकिंग अबाउट अ पाथ विच विल हेल्प अस कम आउट ऑफ कर्म बंध, कर्म बंधम प्रहास्यसि। नाउ अगर कर्म बंध से निकलना है तो वी कैनॉट अप्लाई द सेम टेक्निक ऑफ वर्क which was being advocated from verse number 11 till 37. There has to be some different technique. What that technique is, Krishna will talk about later, जो आज हम लोग देखेंगे। पर वो टेक्निक अप्लाई करने का फायदा क्या है वो अभी कृष्णा बता रहा है। 40 में बताएंगे कि ये पाथ पे चल के क्या फायदा है, ये पाथ पे चलने वाले लोगों का फायदा, क्वालिटीज क्या है। भूशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम, ऐसे लोग जो होते हैं उनका जो क्या बोलते हैं, जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं उनके लिए एक बहुशाखा ह्यनंताश्च मीनिंग अनलिमिटेड ब्रांचेस ऑफ टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन होते हैं। दे आर नॉट सिंगल पॉइंटेड फोकस्ड, सिंगल फोकस नहीं होता है जैसे एक कृष्णा कॉन्शियस आदमी होता है। फिर बाद में वेदों के बारे में, वेदों में क्या प्रॉब्लम है ये बताया गया है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो कृष्णा खुद को वेदांत कृत बोलते हैं, he is not just the compiler of Vedanta, but he is also the person who knew Vedas, who compiled Vedas, and who gave the knowledge of Vedas to Brahma. And such a person is saying कि Vedas have a fault in it. What that fault is, you might have already discussed, so I will not go into details. अभी फिर बाद में क्या हो गया है कि ऐसे लोग जो they do not look into the benefits that Vedas give, and because of this one they focus more on the higher purpose. ऐसे लोग आगे क्या करते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, आप ये जो तीन गुणों से भरपूर जो है वेद है उनके परे चले जाओ, गो बियॉन्ड इट। और फिर बाद में ही अगेन गिव्स एन एग्जांपल एज टू जिनको पर्पस समझ में आता है उनके लिए पाथ फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ही सेइंग कि एक ये वर्स जो है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ये। तो ही सेइंग ऑल पर्पस सर्व्ड बाय अ स्मॉल वेल कैन एट वंस बी सर्व्ड बाय ग्रेट रिजर्वायर ऑफ वाटर। तो अभी पहले गांव में प्रथा ऐसी थी कि अलग अलग फॉर डिफरेंट पर्पसेस द पीपल हैड डिफरेंट वेल्स। तो पीने का पानी के लिए एक कुआं होता था, कपड़े धोने के लिए एक कुआं होता था, नहाने के लिए एक कुआं होता था। तो इसके वजह से अलग अलग कुएं होते थे। पर भगवान इधर बोल रहा है कि अगर नदी है तो नदी में आप पानी पी भी सकते हो, कपड़े भी धो सकते हो और नहा भी सकते हो। और वो बोलता है कि ये अगर जिसको पता है तो वो उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाता है। ही इज सेइंग कि जो वेदों का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, उसका वो अगर कोई समझ पाएगा तो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाउ मच वी शुड गिव इंपॉर्टेंस टू वेदास एंड फॉर व्हाट कॉन्टेक्स्ट। जब हमें पता चलता है कि वेदों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि टू ब्रिंग अस बैक टू कृष्णा, ये जब हमें पता चलेगा तो जो ऐसी चीजें हैं वेदों में लिखी हुई है विच विल
कंटिन्यूअसली गिव अस द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। और जो क्रीम है वेदों का विच विल हेल्प अस गो बैक टू कृष्णा, हम लोग सिर्फ उसके ऊपर ध्यान रख के हम लोग सिर्फ वही ले लेंगे। तो दैट्स व्हाई कृष्णा इज सेइंग कि जस्ट अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड एवरी एक्शन, automatically you will understand what decisions to be taken in what context. And that is where this famous verse comes in. Now this verse, we can talk about it in detail for a long time, but just we will, because this is the previous verse, इसके लिए how this verse is linked to the next verse हम लोग इतना ही देख लेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं अपने को कि you cannot you do not have a right to perform somebody else's work. अधिकार एज अ वर्ड इन द मटेरियल सेंस अगर अप्लाई करेंगे तो हमें समझता है कि अधिकार मतलब हम लोग जब एक महीना काम करते हैं कंपनी में तो सैलरी मिलना ये हमारा अधिकार बन जाता है। बट यहाँ पे अधिकार ये वर्ड कृष्णा ने रिटर्न्स के लिए नहीं किया हुआ है, रिवॉर्ड के लिए नहीं इस्तेमाल किया है। ही हैज यूज्ड इट फॉर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टू से टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया दैट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to behave nicely in the society, it's understandable. But to tell somebody that it is your right to behave correctly in the society, it will not be understood properly. But यहाँ पे कृष्णा the word अधिकार, the word right is using in terms of duty and not in terms of rewards. That is because Arjun had initially said कि I will use a begging bowl, which is what a Shudra does or a sannyasi does, but I will not want to kill my relatives. He is saying it is your right to perform. Not doing the duty is not an option for you. You cannot avoid your duty. You cannot put a claim on the rewards, but you have to do your duty, and you have to do only your duty, not somebody else's duty. पूरा चेकमेट कर दिया है अर्जुन को भगवान ने कि आप कुछ भी नहीं है, यू आर अ पर्सन विथ द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ फ्री विल एंड यू हैव टू डू ओनली एज व्हाट यूर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर। तुमको जो एक सर्कल दिया गया है वही सर्कल में आपको काम करना है करके। नाउ द क्वेश्चन ऑफ दिस वर्स कम्स इन पिक्चर एज अ बैकग्राउंड। सॉरी बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा हो गया, बट अभी इसमें देखते हैं। नाउ कर्म करो, यहाँ ये तो पहले बता दिया भगवान ने आपको, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यू हैव टू डू योर ड्यूटी। नाउ ड्यूटी कैसी करनी है ये भगवान यहाँ पे बताते हैं। ओके, सो नाउ पहली चीज है कि इसमें मीनिंग भगवान ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ऑफ द वर्ड योगा। तो दिस योगा एज अ वर्ड वाज यूज्ड इन वर्स नंबर 39 आल्सो, बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। ये पहले भी यूज किया था, बट अभी भगवान योग इस वर्ड का डेफिनेशन दे रहे हैं और उस डेफिनेशन के साथ वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रहे हैं। सो देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट भगवान इज नाउ टॉकिंग। फर्स्ट इज परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड, दैट इज द फर्स्ट। Then secondly, abandoning all attachment to success or failure. And the third is equanimity. Okay. So now equanimity is a broad word. Okay. In this particular context, it can be applied to attachment to success or failure. Meaning अगर आप succeed भी होते हो या fail भी होते हो, still you need to remain equipoised. दैट इज मीनिंग हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं 2.5 काइंड ऑफ पॉइंट्स बोल सकते हैं। तो अभी पहला डेफिनेशन क्या है योगा का कि सच इक्वानिमिटी इज कॉल्ड योगा। तो इक्वानिमिटी मतलब क्या है कि whenever I perform work, if I am not doing it for the results, then I would not mind whether I succeed or I fail. And that is called as equanimity. अभी इसको एक एग्जाम्पल की तरफ अंडरस्टैंड करते हैं। लेट से आप मुकेश अंबानी के एकदम क्लोज फ्रेंड है,
और मुकेश अंबानी आपको कहते हैं कि भाई ये 10,000 करोड़ है, मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको मैनेज करो, देखो जितना फायदा हो सके कमाओ। ओके, दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज उसका। आप अपना दिल लगा के काम करेंगे टू से दैट ये मुकेश अंबानी मेरे दोस्त का वेल्थ है, इसके लिए आप उसको ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देना है। पर समझो, और समझो प्रॉफिट हो गया, 10,000 करोड़ के ऊपर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, आपको क्या मिलने वाला है? आपकी मंथली सैलरी मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, या फिर उसके हद से शाबाशी मिलेगी। तो यू विल नॉट बी सो थ्रिल्ड विथ 1,000 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। और समझो 1,000 करोड़ का लॉस हो गया तो ऑल्सो आपको उतना दुख नहीं होगा। पर यही पैसा अगर आपका होता तो आपको कितना दुख होता। और लेट से 1,000 करोड़ में से वो 1 करोड़ निकाल दो, 10,000 और 1,000 इतना ही ले लो, तो 10,000 रुपया कंपेयर टू 10,000 करोड़, उसमें फायदा नुकसान जब होता है तो आपको 10,000 करोड़ में टेंशन नहीं आता क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है। और 1,000 करोड़ फायदा होता है या नुकसान होता है तो भी आपको टेंशन नहीं आता या फिर ज्यादा आनंद नहीं होता है क्योंकि वो भी आपका पैसा नहीं है। So in this whole example, the only difference that has happened is your attachment to the money, whether that money was yours or somebody else's money. It is the only defining difference between both the examples. पहले में पैसा आपका नहीं था, इसके लिए आपकी अटैचमेंट नहीं थी, ना तो फायदे के लिए था, ना प्रॉफिट, ना तो नुकसान के लिए था। And in the second example, because it was your money, okay, there was some attachment. So even if it was 1 crore times lesser than the original investment and lesser than the profit also, 1 crore times the profit was also lesser. Despite that, because your attachment was higher, the loss or profit gave you more happiness or more distress than in the first scenario, because it was not your money. And this is precisely what Krishna is saying, ki you do not have any control over the success or the failure. The result, the success or the failure is actually controlled by somebody else, which he clarifies in a few different verses, meaning 3.27 में बताते हैं, फिर 18.15 में भी बताते हैं। तो the super soul, the Paramatma is actually the ultimate observer and the ultimate not observer, ultimate giver of the results. उसके बिना कुछ होता नहीं आगे। सो वो अलग अलग जगह पे बताते हैं कि ये जो रिजल्ट जो होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स। तो हम लोग कभी लगता है कि हम लोग कंपनी में काम करते हैं, सो हमें लगता है कि हम लोग ने कोई प्रोजेक्ट अच्छा डेवलप किया, कुछ अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा या कुछ अच्छा डायग्राम बनाया, तो हमें लगता है कि हम लोग ने कुछ अच्छा काम किया करके। Yeah, but we do not understand that there were many factors that went into the execution of the project, because of which it was successful. We do not even have control over our eyelid also. आपने ये एग्जाम्पल सुना रहेगा। ओके, एक देवता है जिनका नाम है निमिष। ये देवता का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना है कि हमारे जो आईलिड्स होते हैं उनको कंट्रोल करना। तो ये कभी कभी वी डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स विच हैपन ऑटोमेटिकली, वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर हैपनिंग एंड व्हाट हैपन्स इफ दे डू नॉट हैपन। तो हमारे आईलिड्स हर सेकंड में, हर 2 सेकंड में क्लोज होते रहते हैं, और उसका शरीर को, आंखों को क्या फायदा होता है शायद हमें पता भी नहीं होगा। पर ये जो आईलिड का जो कंट्रोल है, इट इज देयर विथ वन डेमीगॉड नेम एज निमिष। ओके, and we do not even have control over blinking of our eyelids. If we want, still we will never be able to keep our eyelids, our eyes open for even 5 minutes also, let alone complete life. And इसके लिए भगवान विष्णु का एक नाम है अनिमिष, meaning भगवान विष्णु's eyelids this demigod Nimish cannot control. That's why his name is Animish. So what I'm trying to say is we are not in a position to control even our blinking of eyelids, let alone
कंट्रोलिंग एनी अदर फीचर ऑफ अवर बॉडी, और हम लोग अपने बॉडी अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम लोग किसी और के बॉडी को या किसी और के माइंड को क्या कंट्रोल करेंगे? And when we cannot control somebody else's body or somebody else's mind, how can we control what actions they are supposed to perform? And when we cannot control what actions they are supposed to perform, how can we control the results that come out of those actions which are favorable for us? So it is obvious that absolutely nothing is in our control. And in such a context, to feel proud about what we have done is nothing other than foolishness. So Krishna is saying, because you do not have control over anybody else's actions and the results that come out of it, do not consider yourself as the only doer of your action. There are few other doers also, and it has been clarified who are the doers in the 15th verse of 18th chapter. तो भगवान बोल रहे हैं कि जब आप अकेले ने काम नहीं किया है, किसी और ने भी आपको मदद की है, तो हाउ कैन यू टेक द कंप्लीट क्रेडिट? And that is why he is saying do not be attached to the success or failure, because the factors which led to success or failure are beyond your control. So why are you attached to that success or failure? You just do your duty. The way a mother serves his child, her child, मीनिंग अगर किसी ने उसको बताया भी कि भाई कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आता है और अपनी माँ को बताता है कि ये बच्चा जो है 25 साल के बाद, उसका एजुकेशन होने के बाद आपको घर में नहीं रखेगा, अपनी बीवी के साथ अपना घर दूसरा बना लेगा और वो आपको बाहर निकाल देगा घर से, फिर भी माँ अपने बच्चे का ख्याल रखना छोड़ेगी नहीं. दैट इज द सेल्फलेस ड्यूटी. And that selfless duty is, obviously it is not the most perfect example, but it is the closest example available in the material world, which comes meaning closest to what Krishna is expecting from us with respect to not being attached. अभी कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि because you are not the controller of the actions, of all the actions that contribute to a execution of an event, that's why you cannot consider yourself as the performer or the only performer of the action, and because of that you cannot remain attached to the success or failure. And जब आप success और failure इसके साथ attach नहीं होते हैं, तो then you have to perform your duty equipoised. Perform your duty equipoised मतलब क्या है कि जब हमें पता चलता है कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, the result is beyond our control, and the result, because it is controlled by Krishna, will obviously be good in the long term for everybody. In such a situation, you can perform your duty equipoised. So equipoised, it could be in the sense of profit or loss, या victory or defeat, या it could be sukha dukha, happiness distress, कुछ भी हो सकता है. And however it is, you remain unattached, you remain equipoised in while doing your duty and while receiving the results of your duty. Okay. Now अभी एक एग्जाम्पल है, तो मैं एक्चुअली में 49th के वर्स में बोलता हूँ. एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये it's a gradual change. तो every time when we see some result coming to us as a result of some of our actions, तो what happens is, if we are attached to it, अपना जो कॉन्शियसनेस है, जो अपनी जो चेतना है, अपनी जो भावना है, अपनी मेंटालिटी जो है, इट कैरीज सम इम्पैक्ट. तो अगर मैं समझूंगा कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया और ये प्रोजेक्ट मेरी वजह से इंप्लीमेंट हो गया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई विल डू, आई विल बिकम प्राउड, I will become overconfident, and I may not be able to do the work properly. But when I give this result to Krishna, saying that
Krishna, it is because of you that this has happened. Okay, I am not the one who actually made it happen. This actually carries a positive impact over spiritual, our consciousness, that we remain humble, we remain subservient to Krishna, and we remain always uh, thankful to Krishna for what he is giving us. अदरवाइज जब हम लोग अपने आप को कर्ता समझते हैं तो हम लोग को लगता है कि यहाँ हम लोग को किसको थैंक करने की जरूरत ही नहीं है करके। तो एक ये एक तमिलनाडु में अलवार जो संत समुदाय था अलवार का, उसमें मैं नाम भूल गया हूँ, बट किसी एक संत का ये एग्जाम्पल है। तो वहां पे जो मतलब एक दो ऐसे लोग थे, बहुत बदमाश जैसे थे लोग। तो एक संत जो था वो कपड़ा बेचने के लिए रास्ते पे बैठा हुआ था और वो बदमाश आदमी उसके पास आ गया। तो उसका मजाक करना था उसको, तो उसने पहले कपड़ा लिया और पूछा ये कितने में है? तो बोलता है 1 पैसा, जो भी वॉट एवर ही मस्ट हैव सेड, 10 पैसा 5 पैसा जो भी है। तो उसने वो कपड़े को फाड़ दिया 2 टुकड़ों में। फिर उसको पूछा कि अभी इसकी क्या कीमत है? तो उसने बोला 5 पैसा। उसने वापस फाड़ दिया, वो बोलता है अभी 2.5 पैसा है। वापस फाड़ दिया, वापस पूछा, बोलता है अभी 1 पैसा, आधा पैसा, करते करते। और वो भी, ये बंदा भी रुक नहीं रहा था फाड़ने के लिए, और वो अपना संत जो था वो भी जवाब दे रहा था। फिर बाद में काफी छोटा हो गया, बोलता अभी तो इसका मूल्य कुछ नहीं है, तो मैं मुफ्त में ले जाऊं क्या, या तो मुझे कुछ आपको देने की जरूरत नहीं है करके। तो वो बोलते हैं कि मूल्य तो है, मूल्य आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो बोलते हैं कि मूल्य हमें उस धरती से पूछना चाहिए जिसने अपने एफर्ट्स डाले थे इस कॉटन को उगाने में। मूल्य उस फार्मर को पूछना चाहिए जिसने वो बीज जो थे उसने बोए थे इसमें धरती में। मूल्य उस वर्षा को पूछनी चाहिए, रेन को पूछनी चाहिए, जिसने पानी देके इस पौधे को बड़ा किया। मूल्य उस सूरज को पूछना चाहिए जिसने अपनी धूप दी थी और इसको बड़ा किया। मूल्य उस चंद्रमा को पूछना चाहिए जिसने इसको अपने किरण दिए थे और उस किरणों से उसका न्यूट्रिशन दिया था उसको। ऐसे करते करते उसने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए और बताया कि these were all the factors which contributed to the growth of this particular tree, from which the cotton came out, from which this dress was prepared. So even if you don't give me anything, I have no problem, but at least pay your respects to the these elements, the nature and the demigods who deserve your respects. और ये सब सुनने के बाद वो बदमाश एकदम मतलब ठंडा हो गया, एंड ही इमीडिएटली रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड ही इमीडिएटली गॉट रिफॉर्म्ड आल्सो। और उस संत के पैर पकड़े उन्होंने और उसने माफी मांगी, एंड देन ही स्टॉप्ड ऑल हिज नॉनसेंस। तो ये पॉइंट ये है इसमें कि इफ वी एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीवन एक्सेप्ट अस in the performance of the action which generates the results that are favorable to us, then this level of humility comes in us to say कि it is not because of me that this has happened, it is because of Krishna and his servants and the other devotees and everyone else because of which this action is happened. And had they not done, this action would never have happened. So my contribution to that action is 0.001%, whereas others have contributed 99.99%. We should always remember that the only 2-3 activities that a farmer does is फील्ड को प्लाव करता है और उसमें जमीन में बीज बोता है और उसको पानी डालता है, वो दैट्स ऑल ही डज. Everything else is done by nature, by earth, by air, by sun, by moon, by everyone else. And ये जो है, these are actually the primary factors because of which it grows. अगर बीज बोके
अगर हमेशा अच्छी फसल होती तो the farmer would not be dependent on the rain, the farmer would never be dependent on sunshine or the earth. Yeah, it is not the farmer who causes something to grow. He is just a doer in terms of sowing the seeds. This is what we do. We do not actually cause someone else to do those actions which favor our result. We only do our part, which is a minuscule part. And this is what we need to learn in terms of trying to generate credit out of our action, that it is not us, it is only Krishna and his servants and his nature and everyone else who is primary participant in performance of the action, and it is not us. That is how we improve our consciousness gradually. जब हम लोग को ये कॉन्स्टेंटली पता हो जाता है कि इट इज नॉट वी, इट इज समबडी एल्स, हमारा कॉन्शियसनेस इंप्रूव होता है, एंड दैट इज हाउ वी ग्रेजुअली डेवलप द इक्वानिमिटी एंड बी इक्विपॉइज्ड in the performance of the action as well as the results of the action, good or bad, whatever it is. Now let's go into the next verse now. Any question on this verse, or can I go to the next verse? I think if somebody has question, हम लोग last में लेते हैं. We'll cover this verse. ठीक किसी है, का कोई क्वेश्चन है तो अपना लिख के रखो, and then at last we can take this. Uddhav Prabhu, you want to say something? Oh, wonderful class. Just going through things, and if you can just highlight, then what is our duty? Like how do we identify our duty which we are doing? जो हम कार्य करते हैं at this level. प्रभु, क्वेश्चंस तो कोई भी पूछ सकता है, आंसर देने के लिए सिर्फ इधर गोपी प्रभु बैठे हैं, तो उनको दे बोलिए आंसर देने को. No, it's not that. We are just talking on the terms that it's for the benefit of everybody. कि अगर हम लोग identify करेंगे कि what are the duties now, when we say that okay, duty मैं कर रहा हूँ, going to the office and doing the work, that's the duty. Identify on that level, and then it will be a clarity for everybody. Just to understand. इतना अच्छा क्लास है और उसके अंदर हमको यही पता नहीं चले कि जो मैं ड्यूटी क्या कर रहा हूँ, ड्यूटी के अंदर मतलब व्हाट इज द सेंस अबाउट इट. ओके, हरे कृष्णा. सॉरी प्रभु. अरे सॉरी क्यों प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु. the first we need to understand at what level we are thinking when it comes to the word duty. Okay, so are we thinking at the bodily level or are we thinking at the level of the soul? So हम लोग दोनों एंगल से बात करते हैं, तो पहले बॉडीली एंगल से देखते हैं. तो बॉडीली एंगल से we have different designations. One designation is I am a husband, another I am a son, I am a father of us, I am a friend, I am a employee of a company, right? So in all these respective designations, the duties are different. So what I can do as a father, I cannot do as an employee. So that means different roles के लिए different duties are applicable. When I am working in a company, then my responsibilities are to perform the work which is assigned to me and get the salary on a monthly basis. When I am working as a husband, I have some duties towards my wife which I have to perform. Similarly, now I am not a brahmachari, I am not a vanaprasthashram, I am not a sannyasi, I am a gruhastha-ashrami. So for a gruhastha-ashrami, there are these primary duties that are applicable with respect to being able to raise my family and myself in Krishna consciousness. I'm not talking about karmis now, I'm talking about devotees only. And in order to raise the family, the wife and children in Krishna consciousness, I need to
do certain activities which are on a daily basis required, which could be deity worship, bhoga offering, chanting, reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, Ramayana, and all those things. Anything and everything which is conducive to improving our knowledge and devotion towards Krishna, and anything which is against it, I have to stop it. These are the primary duties with respect to my family, with respect to doing something or not doing something, and with respect to family, friends, and everything, which is basically should be as minimum as possible to be able to generate the money which is required for sustaining my family. अगर उसमें भी कुछ अघोरी कर्मा करने की जरूरत पड़ती है, तो let's say there have been instances where people were working in meat industry, and despite that they were practicing their devotion towards Krishna. So it was not so simple for them to leave the job, because that is providing them money to sustain the family. So ऐसे time पे there were devotees who sincerely prayed to Krishna to be able to get another job and come out of this aghori karma, and they were able to get that job also. So जब हम लोग को कोई ऐसा चीज करना पड़ता है जो हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते, तो ऐसे टाइम पे द ओनली सॉल्यूशन अवेलेबल टू अस इज प्रेयर्स. I'm just talking this at a principal level, Prabhu, because this is anyway a vast topic. The other point was at the level of soul. At the level of soul, we know, we everybody knows this verse. Jivera Swarupa hai Nityara Krishna Dasya. We are the eternal servants of Krishna. That is our only designation and nothing else. So in that case, anything and everything that can be done in order to serve Krishna has to be done. Now then the question comes up as to how do we prioritize this one if there are conflicting duties between the level of the body and the level of the soul. So obviously at the level of the soul, what is right is supposed to be done, but that does not mean if the conflict is so high, if we take up what is right at the level of the soul, we might even lose our body or our family, or meaning it's a drastic action. So then we have to take an easier route to give preference or temporary preference to the level, to the duty that is supposed to be done at the level of the body over the level of the soul. For example, अगर कोई लेट्स से मैं फ्लाइट से जा रहा हूं और पाकिस्तान में मेरी फ्लाइट लैंड होती है, हाँ, इमरजेंसी लैंडिंग होती है, और वहां पे मुझे टेररिस्ट लोग किडनैप करते हैं, बोलते हैं कि भाई चलो इस्लाम कबूल कर लो, तो और तो देन द ओनली ऑल्टरनेटिव फॉर मी इज टू एक्सेप्ट इस्लाम और गेट शॉट एट. तो नाउ व्हाट डू आई डू? तो इफ आई टेक द लेवल ऑफ द सोल को प्रेफरेंस देता हूं, so there is a possibility I will lose the body. I will probably lose the opportunity to make further progress in this body itself. So maybe temporarily मैं बोलूंगा कि भाई ठीक है, I accept it करके, and I accept it, and whenever opportunity provides me, I come out of it and I come back to Krishna that way. So it was a very crude example, but to just indicate saying that there could be chances, contradictions हो सकता है at the body and at the level of the soul. उसमें हम लोग को depending on the context we have to take the route. I know I have not answered this question very well, but you would be in a better position to add to this, Prabhuji. I That wouldn't was have been wonderfully better. answered. I wouldn't have been in a Yeah, position to answer it better than what you have done. अच्छा हुआ प्रभु, कभी कभी आवाज सुनाई नहीं देता है. So नहीं सुना था आपने, 2 बार बोला मैंने. हरे कृष्णा. we will move to the next verse. Yeah. So दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः. O Dhananjay, keep all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Abhi, it is this verse also continues on the
negative side of the previous verse. तो अभी क्या हुआ है, पहले कृष्णा has said what to do, okay, and now in this one he has said what happens if you don't do and what happens if you do or how you do it. तो इधर पहला चीज ये है कि this line and this line talks about the negative type, negative aspect, and these two lines talk about the positive aspect. And this is, as we spoke earlier, this is the pattern that Krishna has followed. A concept, positive, negative, जो फॉलो करते हैं उनका पॉजिटिव, जो नहीं फॉलो करते उनका निगेटिव, ये ऐसे बारे में कृष्णा हैज स्पोकन. तो अभी क्या है इसमें, लेट्स गो वर्ड बाय वर्ड. दूरेणा इज टू कीप समथिंग अवे. What is that something? Karma. So he's saying keep karma away. But this karma is not the regular karma. He's saying what kind of karma? Avaram karma. Avaram meaning something which is not good. Now, what do you think? What kind of karma is Krishna referring here? Anybody can say? When this abominable activity is talked about here, Krishna is referring to, what do you think, what kind of activity is he saying as abominable, referring to as abominable? Anybody? So is he referring to eating meat here? Samir Prabhu has raised his hand. Samir Prabhu? Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, Your I think voice this is very abominable. Yeah. So when he's talking abominable activities, probably any activity which will take you away from Krishna's devotion. Am I right, Prabhuji? Okay, can you give an example? Well, कोई भी materialistic काम करो. Sound clear नहीं है. उनका आवाज ब्रेक होता है. मूवी में एक्चुअली मैं क्या करूंगा जिसमें एक्चुअली कृष्णा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ कृष्णा. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा सेवा. तो ऐसे सब Okay, let me ask a question. एक्टिविटीज बोल सकते हैं प्रभु जी. A person is eating meat. Is that an abominable activity? Of course, Prabhu ji. Hare Krishna. Okay. So is that what is Krishna referring to here? So मतलब 4 regulative principles बोल सकते हैं जो प्रभुपद जी ने अपने को बताया है कि इसमें से कोई भी एक्टिविटी हम लोग करेंगे तो वो abominable है. मैं आई एम गोइंग इवन लिटिल फर्दर अबाउट a person not doing Krishna seva. So even that can be abominable. Okay. Now let's take this conversation forward. This concept is very much important to understand. इसके लिए थोड़ा मैं वापस पूछ रहा हूँ मैं. अभी let's say a person is giving donation to a needy and a poor person. Do you think Krishna is referring to this also as an abominable activity? प्रभु जी अगर इस नीडी पर्सन को देते समय अगर वो आदमी खुद दे रहा है, मतलब इफ ही इज थिंकिंग दैट ही इज द डूअर, ही इज द गिवर and he takes pride in doing that without thinking that this is Krishna's wish and he is just a mediator or he is just a medium, तो फिर भी वो abominable हो जाएगा प्रभु जी. Yes, very right. Thank you so much. Excellent. Thank you. So let's look at it from the perspective of few previous verses. Yeah, Krishna has started explaining Buddhi Yoga, where he is saying you are supposed to apply your intelligence and then perform your action. Which means what? When you apply intelligence, you do not look at the short-term benefit, but you look at the long-term results. So when you give donation to a poor and needy person with the aim of getting back results out of it, then you are looking at a short-term benefit, but long-term में problem क्या है? You will continue to in the cycle of life and death. So this is not intelligence.
intelligence should be such that one should try and stop the cycle of life and death. In that case, you are applying intelligence. So any activity is which is performed without applying the right intelligence, Krishna is referring to that as abominable here. And Krishna, if you look at the context of the few previous verses, he is saying ki those people whose knowledge is stolen by material desires, they follow the Vedic regulations. And that regulation actually which keeps you bound to this material world, that is what he's calling as unintelligent. And that's why those actions which are performed with the aim of obtaining some material benefit to enjoy at this bodily level are termed as avaram karma. So meat eating वगैरह तो Krishna is not talking about here, because if you notice, Bhagavad Gita does not address a particular section of people. Bhagavad Gita starts at the level of minimum karma kanda, which means not a sinful life, but definitely not a life which helps you go back to Krishna. But it at least वो एक सेफ्टी नेट बोलते हैं ना, कि आदमी कुछ माउंटेन पे काम कर रहा है या कोई बड़ा ब्रिज बना रहा है, तो इंजीनियरिंग लैंग्वेज में एक सेफ्टी नेट बोलते हैं जिसको नीचे बिछा के रखते हैं, तो आगे आदमी गिर भी जाता है 10-15 फीट से तो वो नेट पे गिरेगा, नीचे गिरेगा नहीं. तो ये जो कर्मकांड है ना, उसको सेफ्टी नेट बोल सकते हैं हम लोग, कि अगर आपने खुद के फायदे के लिए भी किया तो still it is not a sinful activity, which means you will not go down to the in your next life you will not go down into the species of animals or plants. आप कम से कम ह्यूमन लाइफ को तो आपको मिलेगा. That is why Krishna is saying, and that is the level, karma kanda is the level, and upwards is what Krishna is addressing those people who are not even at the karma kanda level, who are at the sinful activity level. For them this Bhagavad Gita is still not being meaning referred to. It is referred to for people who are minimum at a karma kanda level, and that karma kanda is what Krishna is referring to as abominable here. Okay. And that is why he's constantly saying Buddhi Yoga Dhananjaya, by on the performance of using your intelligence you perform your yoga. So now the first line would mean that keep your those karma kandik avaram karma away from any kind of performance by applying your intelligence, O Dhananjaya. And what Prabhupada has done, Buddhi Yoga is translated here as Krishna consciousness. Why? Because from one perspective, at a preliminary level, if we look at it, Buddhi Yoga meaning that yoga which is performed by the application of intelligence. And here Krishna, Prabhupada is going one step forward, because he understands complete Bhagavad Gita, and what is subsequently Krishna has come to the conclusion of what Buddhi Yoga and what Bhakti Yoga is by the 18th chapter. Prabhupada, rather than confusing us by giving two different terminologies and their definitions at two different places, one in 2nd chapter, one in 18th chapter, he has given us a consistent definition of the same term or different terms across chapters. Now what happens is Buddha Sharanam Anvicha. Okay, Buddha meaning that one which is done by the intelligent people in the right consciousness. Okay, and they what do? They give they perform surrender. They surrender to whom? To the Lord. They surrender to the Lord because he is actually the controller of the action as well as the results. And finally, Krupanaha Phala Hetavaha. Phala Hetava meaning what? Phala is results, Hetava is the objective. Those whose objective is to enjoy their results, they are Kripana. Now, Kripana meaning miser. Now, obviously, a question will come up as to why the word Kripana is used here. Because misers, they do not spend money. मैं कंजूस बोलते हैं ना हम लोग.
So they do not spend money. So अगर money spend ही नहीं करते हैं तो they cannot buy anything, and if they cannot buy anything they cannot enjoy anything. तो इधर कृपणा क्यों यूज किया है? So the main reason is basically the Kripanas do not understand how to spend the wealth for the right purpose. तो बहुत मतलब लाखों करोड़ों रुपए अगर मेरी तिजोरी में बंद रहेंगे और मुझे पता ही नहीं है, और मुझे पता होगा तो भी मुझे उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, वो लोग जब देह छोड़ेंगे तो पैसा भी यहाँ पे छोड़ के जाएंगे. So now what has happened? That person has lost the body, he has lost the money, and that now money has gone to somebody else, and now he is enjoying that money. So the miser person has done a lot of efforts, taken a lot of efforts, done a lot of work to generate money, but that money he will never be able to use it for his own enjoyment. So what Krishna is saying is, do not behave like a miser. If you are taking efforts, that effort should be for the right purpose, so that you can enjoy the ultimate result. That ultimate result is reaching to Krishna. Whereas these misers will not be able to spend that money on themselves, and they will never be able to enjoy these results for themselves at all. Now, why we should understand one very important point as to why this Kripana is specifically mentioned here. Okay, so let us take an example. Okay. So let's say there is a child who is in, say, grade 8, and he is a bit weak in mathematics. तो उसके 2 दिन के बाद उसकी एग्जाम है, और उसके फादर उसको बोलते हैं कि बेटा तू एग्जाम में थोड़ा अच्छे मार्क्स मिलाने के लिए थोड़ा एफर्ट्स डालो, थोड़ा पढ़ाई करो. तो ये लड़का बोलता है, नहीं मुझे अभी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है, मुझे अभी खेलना है. तो व्हाट डज हिज फादर डू? ही हैज 2 ऑप्शंस. ही कैन फोर्स हिम टू स्टडी, बट ही डजंट डू इट बिकॉज ही नोज कि यार फोर्स करूंगा तो आधा घंटा करेगा, बाद में उसका ध्यान नहीं रहेगा. तो हिज फादर टेक्स अ मिडल रूट. ही सेज कि ठीक है भाई, 1 घंटा जाओ खेलो, मजा करके आओ, बाद में 2 घंटे पढ़ाई कर लेना. तो वो लड़का जाता है और बाद में आके थोड़ा पढ़ाई कर लेता है. फिर बाद में यही पैटर्न दे कंटिन्यू टू एम्प्लॉय. ओके, अभी दूसरा क्या होता है कि अभी फिर बाद में लेट्स से इंजीनियरिंग की उसकी फाइनल एग्जाम है. ओके, और दूसरे दिन ये पेपर है. सो नाउ ही कैनॉट एम्प्लॉय द सेम पैटर्न बिकॉज क्वांटिटी ऑफ स्टडीज ज्यादा है. ओके, कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है, एंड he has to utilize all the available time with himself to employ. So now what has happened? Now we have 3 scenarios. One scenario was the first one where he did not want to study, which is a bad scenario. Compared to that scenario, when the father gave him an option of play as well as study, that second scenario turned out to be good. But क्या हो गया है? Excellent scenario would have been कि that, और वो सेकंड वो एग्जाम में ग्रेड 8 के एग्जाम में उसको लेट से 75 आउट ऑफ 100 मिले, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन. ओके, बट अगर वो ज्यादा पढ़ाई करता तो मे बी उसको 95 मिल जाते. और ये इंजीनियरिंग के एग्जाम में ही डिड नॉट प्ले, ही ओनली स्टडीड, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट 100 आउट ऑफ 100 जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? The good scenario was good when it was compared to the bad scenario, or the good option was good when it was compared to the bad scenario. But when it was compared to the excellent one, it was not good. So it is said that the good is the enemy of the best, and it is better than bad. तो टू से कि मुझे थोड़ा पढ़ाई थोड़ा खेल के अगर 75 मिल रहे हैं
So to consider that as excellent is anyway foolishness, but to consider that as good is good only for a certain amount of time, only when it is being compared with the bad. When it is compared with the excellent, the good is not good, good becomes bad. So now similarly, what Krishna is doing here in this particular verse is he is taking Arjun to the next level to say that कि पहले मैंने जो आपको बताया था आपको एंजॉयमेंट मिलेगी या तो हेवन में या तो अर्थ पे या तो आपको मिलेगी या तो कौरवों को मिलेगी वगैरह, ये सारा जो मैंने बताया था that was at a preliminary level, that was at a good level, because you were planning to run away from the battlefield, although not as a coward, but out of compassion for the Kauravas and your own people. You were planning to exit the battlefield, which would have been sinful, because as a Kshatriya, you would not have performed your duty. So compared to that bad activity, the option that I had proposed to you was good, but it was good only until it is compared to the bad option of exiting the battlefield. But when it is compared to the best option, which is performing your action for the service of Krishna as a matter of bhakti, then that good option becomes bad. So that's why he is saying, Durena Yavaram Karma, keep those abominable thoughts and actions of running away from the battlefield. Not only that, doing it for the sake of getting some material benefit, even that thought and those actions, keep them away. Why? Because you are supposed to perform your actions via your intelligence. And that intelligence requires you to consider the long-term benefit of any action rather than the short-term benefits. The short-term benefit meaning you will go to heaven, you will come back, you will again go to heaven, you will come back, and that cycle will go on. But the long-term benefit is to even transcend this material world and go back to Krishna. That is the long-term benefit which can be achieved only if you do a karma for the service of Krishna, not Yavaram karma. Avaram karma is something which is an activity, as Samir Prabhuji rightly mentioned. Any activity that keeps us away from Krishna is avaram karma. Hare Krishna. Okay. So any activity that keeps us away from Krishna is avaram karma. Okay, because karma bandham prahasyasi is only possible when we do a karma and not karma. So many people have this understanding that punya karo karke. So punya is good as far as it is compared with pap, but punya is bad when it is compared with akarma or bhakti. देखा दूसरा एक ऐसा एग्जांपल है कि कोई अगर छोटा बच्चा 6-8 साल का गुम हो जाता है तो उसको कोई आदमी उसके ऊपर तरस खाता है और उसको चपाती रोटी सब्जी देता है उसको. तो एंड दिस पर्सन इज वेरी हैप्पी सेइंग दैट अरे वाह मेरे को मैंने किसी बच्चे के लिए अच्छा काम किया करके. दूसरे दिन वो बच्चा वापस भूखा होता है तो वापस ये बंदा उसको रोटी सब्जी देता है. तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर बाद में बोलता है यार ये हरेज तो मैं नहीं कर सकता हूँ करके. तो देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग हिज एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी इन फाइंडिंग आउट हु द फादर इज. एंड जब उसको पता चलता है अरे ये तो एक करोड़पति आदमी का बेटा है और ये आदमी उस बेटे को उस करोड़पति बाप से मिला देता है. And in such a case, what has happened? Even the father is happy, the child is also happy, and this person is also happy. Yeah, that person who was forced to cook extra on a daily basis and gives this to the child is now not required to do it. The child is happy because he is not dependent on this person, he is dependent on his own father, which is the natural stuff. Yeah? And the father is also happy because he has got back his lost child. So that is where punya becomes bad. When you do punya, you remain in this material world. So Krishna is waiting for us in the spiritual world, and we are saying no, we are doing punya
because of which we are enjoying in this material world, and we remain here in this material world. So the guru or the sant saintly people jo hai, who are teaching us to perform bhakti, they are also unhappy with us because we are not focusing on bhakti, we are not focusing on akarma, we are focusing on punya karma, and Krishna is not happy. So instead, perform bhakti, perform akarma, go back to Krishna. The guru and the saintly people will also be happy, Krishna will also be happy, and we will also be permanently happy. Hare Krishna. Thank you so much. I hope this was okay. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. Wonderful class. Lot of technical details and very nicely explained. Avaram karma kya hai and how it has to be analyzed. So, lot of things about Buddhi Yoga. Stop. So there are a lot of nice points. I'm sure there are a lot of questions because many people were raising hands. Jaya, Jeev Pawan Prabhu. So instead of myself taking time, I'm giving them opportunity. They have nice chance. We can ask Prabhu these questions. So we can start with Jeev Pawan Prabhu. Jeev Pawan Prabhu had raised his hand. So go ahead, Jeev Pawan Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर समझाया और इंग्लिश में जो आपने इतना अच्छे से समझाया। तो प्रभु जी एक्चुअली मेरा प्रश्न नहीं था, वो प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा था जिसमें समीर प्रभु जी ने बताया था, इसके लिए मैंने हाथ ऊंचा किया था। लेकिन अभी आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है तो एक प्रश्न से पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्रभु जी ने आपने बहुत ही सुंदर तरीके से पहले तो आपने अपने आप को जैसे एक एग्जाम्पल से इतना अपना जो विनम्रता का बताया है, एक जो कुत्ते का जो आपने एग्जाम्पल दिया, तो प्रभु जी वो हम जैसे आध्यात्मिक स्तर में देखते हैं तो हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हमारा वैसा वो विनम्र भाव होता है। लेकिन जैसे कभी भौतिक जगत में जैसे आपने मटेरियल और स्पिरिचुअल ड्यूटीज के बारे में समझाया था, तो उसमें आध्यात्मिक स्तर का जो वो भाव है वही हम सपोज बाहर जब भी कंटिन्यू होता है तो उसमें कभी ऐसा होता है कि कभी कभी उसका इफेक्ट ऐसा आता है, कभी कभी हमें राग द्वेष या ईर्षा, मतलब उसमें कभी कोई हमसे एडवांटेज लेना चाहता है तो हम उसको मतलब वो रजोगुण और तमोगुण का ज्यादा प्रभाव एक्सपीरियंस करते हैं। तो प्रभु जी अपने आप को किस तरह वो बैलेंस किया जाए प्रभु जी? और जैसे आपने बताया कि बॉडीली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है मटेरियल, तो उसमें प्रभु जी एक तो ऑफिस होता है मतलब डेली रूटीन, और जैसे फैमिली लाइफ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो प्रभु जी उसमें भी कैसे अपना वो जो हम्बल नेचर है और जो डिवोटेड टू गुरु महाराज, शीला प्रभुपाद और सभी मतलब ऐसा सर्विस एटीट्यूड किस प्रकार हमारा मेंटेन रहे प्रभु जी, थोड़ा प्लीज समझाएंगे तो। हरे कृष्णा। तो ये आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हो एक्चुअली वी हैव अ बेटर एग्जांपल, यू नो, उद्धव प्रेष्ठ प्रभु एंड गोपी मनोहर प्रभु, they are not only seniors and practicing it for a very long time, but they are actually an examples of humility, and they have also been working for very long time in their professional world, so they are actually better ones. तो मैंने जो सुना है उसके बारे में बताता हूँ। प्रैक्टिकली इट्स नॉट सो सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड आई एम द रॉन्ग एग्जांपल ऑफ दैट। तो मुझे एक याद है, हिज होलीनेस शिवराम स्वामी महाराज ने लिखा था, एवरी टाइम यू स्पीक, एवरी टाइम यू ओपन योर माउथ, आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इज इट यू हु आर स्पीकिंग इट और इज इट योर ईगो हु इज स्पीकिंग इट? तो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट है एंड डीप थिंकिंग वाला स्टेटमेंट है ये, कि जब हम लोग कुछ कार्य करते हैं
तो देर आर सम कुछ एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है कि इस कार्य उस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग कुछ कार्य करते हैं, एंड समटाइम्स दैट ऑब्जेक्टिव बिकम्स सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर ईगो, एंड ईगो के कंपल्शन के थ्रू हम लोग कार्य करते हैं कि मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया है, राइट हो या गलत हो, या मैंने कुछ एक्शन कर दिया है, राइट हो या रॉन्ग हो, जो भी है, नाउ आई हैव टू सपोर्ट इट. So because of that, then we continue trying to support and justify our action, our statement, and then that becomes a kind of a tussle and a kind of protection of our ego. So when we are with devotees, we try to become as humble as possible, and this is a kind of a natural human behavior. We try to be the best, or we want to be acknowledged as the best in every category, whether हमारी eligibility हो ना हो, we want ourselves to be acknowledged as the best. So when I am in the circle of devotees, I want to be called as the best of humility. When I am in the professional world, I want to be called as the best of professionals. तो किसी भी सर्कल में हमको बेस्ट ही बनना है, which is actually against the principle of humility. तो when we are with devotees, and हम लोग का अभी प्रैक्टिसिंग है, तो हम लोग ह्यूमिलिटी तो दूर की बात, हम लोग उसको छू भी नहीं सकते, ऐसे लेवल पे है हम लोग. But the point is, जब डिवोटीज के साथ रहते हैं तो हम लोग क्यों हम्बल बनते हैं? बिकॉज ह्यूमिलिटी एज अ वर्च्यू इज अप्रिशिएटेड ओवर देयर. दैट इज व्हाई वी वांट टू बी कॉल्ड एज हम्बल, बट दैट डजंट मीन वी आर हम्बल. हमारा ह्यूमिलिटी इज एक्चुअली, वी अंडरस्टैंड, वी शुड अंडरस्टैंड इट इंटरनली कि भाई सामने वाला अपनी कुछ तारीफ करता है तो क्या हम उसके लायक है या नहीं है, हमको खुद को समझना चाहिए, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है. जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें खुद को पता चल जाता है कि हम कितने निचले स्तर पे है, एंड ये तारीफ है ओनली बिकॉज दैट अदर पर्सन कैन नॉट सी माय फॉल्ट्स. एंड इन केस ऑफ अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, प्रभु, इट इज ऑलवेज अ डायलेमा हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन अ स्पिरिचुअल लाइफ एंड अ मटेरियल लाइफ. It is always difficult. What I try to do, I don't know whether I'm right or wrong, but what I try to do is basically I try to avoid hurting anybody's ego. I do not show my powers. में जो managerial powers होती है अपनी, वो किसी पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा काम करता हूँ मैं. एंड अब ये बहुत ही डिफिकल्ट है प्रभु, ये प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना भी वैसे डिफिकल्ट है. बट जब कोई भी एक्शन हम लोग ऐसी करते हैं विच एक्चुअली इन्वॉल्व्स अस टू डू फॉर द सेक ऑफ आवर पोजीशन, आवर रेप्यूटेशन, आवर पावर, तो डेफिनेटली इट इज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी. बट आपने पॉइंट भी सही निकाला कि कोई आदमी हमारा गलत फायदा भी उठा सकता है अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो, एंड विच इज वेरी मच पॉसिबल. तो ऐसे टाइम पे विदाउट बी बीइंग अटैच टू द रिजल्ट कि भाई ये बंदे ने मेरा इंसल्ट किया है, इसके लिए उसको सबक सिखाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, तो देन दैट वुड नॉट बी राइट. ओके, वी नीड टू एक्नॉलेज वन मोर फैक्ट दैट वेदर इट इज अ प्रोफेशनल वर्ल्ड or it is a spiritual circle that we are in, we are still the same soul, we are still the same body. So the आपने जो भाग्य में जो लिखा है in terms of being tolerant या being the recipient of all the good or bad mental as well as physical results coming to us, वो तो मिलने ही वाले हैं. आदि भौतिक जो हमें तकलीफें होने वाली है, कृष्णा हैज नॉट सेड कि आदि भौतिक इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड. आदि भौतिक इज एप्लीकेबल 24/7 टू अस. सो प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी कोई अगर हमें तकलीफ देता है तो वो तकलीफ भी हमारे भाग्य की ही है. तो वी हैव टू टॉलरेट दिस वन, बट वी नीड नॉट रिएक्ट टू इट इन अ मैनर वेयर इन दैट कैन हर्ट एंड दैट कैन बेसिकली प्रूव कि वी आर टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन आवर ईगो. यस, अगर आपका कंपनी का या आपका डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है और आपको कुछ अगर एक्शंस लेनी पड़ी तो लेना ही पड़ेगा.
So that doesn't mean कि भाई because you have to remain humble you cannot take any action on the other person, वो तो करना ही पड़ेगा. But being ये apply this as a kind of a measuring criteria. Are you taking any action, or are you speaking something, or are you taking a decision to satisfy your ego, or to be loyal to the job responsibilities that you have? If you take a decision based on that, then you will always be able to take the right decision without letting your ego interfere with your decision. I don't know whether this is right. Gopi Prabhuji or Uddhav Prashta Prabhuji can add to it. सुपर प्रभु, वेरी नाइसली यू आंसर्ड. जैसे आपने बोला कि वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए वैष्णव, वी आर हम्बल. ह्यूमिलिटी हम लोग कोशिश करते हैं, वी आर नॉट हम्बल बट हम लोग कोशिश करते हैं. लेकिन वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जैसे बहुत साल पहले अपने भक्ति वृक्षा में एक लड़का था. he was having a sort of managerial position and that day he was very sad. मैंने पूछा भाई क्या हो गया तेरे को? बोला कि today I had to fire one person and with heavy heart I had fired him. So because of that I'm very sad. But then I told him, see, this is not your fault. It was his mistake due to which he has been fired, and you being a manager you have that responsibility. तुम्हें वो काम करना था. तो इट इज नथिंग पर्सनल. तुम्हारा ऐसा पर्सनल एजेंडा नहीं है कि मुझे उसको कुछ निकालना है या सो एज ए मतलब सभी का अपना मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. वी हैव टू डू दैट एंड वी आर गेटिंग सैलरी, सो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू अवर जॉब्स, अवर वट एवर जो हम लोग को दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो वी हैव टू डू दैट. एंड ऑल्सो व्हाट वेरी नाइस पॉइंट व्हाट सुबल प्रभु मेड वाज कि whether I am acting to suffice my ego, मैं अपने ईगो के लिए काम कर रहा हूँ क्या? अगर ये हम लोग को अगर मतलब हर बार हम लोग अपने आप से पूछते रहेंगे तो then that itself we will get an answer. If we are just doing our duty, then whether we are firing somebody or we are chastising somebody, that is okay. So thank you Subal Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. और किसी ने हाथ उठाया था, आई थिंक जया और एनीबडी एल्स वांट्स टू. सर्वदेव प्रभु. यस प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. Hare Krishna Prabhu. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी. या प्रभु, बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हुआ प्रभु, एंड इट वाज वेरी नाइस सेशन. बहुत बढ़िया सेशन था. जैसे कि बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स थे प्रभु. मतलब मैं मेरे तरफ से कहूँ तो प्रभु कुछ पॉइंट्स मतलब ऊपर से भी गए. व्हाट आई एम सिंसियरली से प्रभु, मतलब व्हाट मतलब मेरे मतलब मैं जितना समझ पाया उसके हिसाब से प्रभु. बट इट वाज वेरी नाइस सेशन प्रभु. बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स और टेक्निकल पॉइंट्स थे प्रभु. प्रभु जी एक क्वेश्चन प्रभु जी था मेरा कि आपने एक सेशन में ये कहा था कि जो कर्मकांड का जो सेशन आपने कहा था प्रभु, इन दैट आपने ये कहा था कि स्टिल मतलब हम भगवान को सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं, बट स्टिल इट्स कम अंडर दैट कर्मकांड सेशन बिकॉज हम वो पाप पुण्य में फंसे रहते हैं. दैट प्रभु जी मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया. बिकॉज जैसे कि हम भगवद गीता में भी यही सुनते हैं प्रभु कि भगवान बोलते हैं कि आप मतलब मेरे शरण में आइए, आप किसी और के शरण में जाने का जरूरत नहीं है, आप मेरे शरण में आइए. वट एवर वी हैव द नीड्स, जो भी हमारे अंदर इच्छा है तो वो आप मेरे पास आके फुलफिल करिए. तो क्या वो प्रभु जी इट्स कम अंडर इन द कर्मकांड सेशन, मतलब वो कर्मकांड के अंदर ही आता है? बिकॉज इवन दो वी आर हम भगवान के पास जा रहे हैं टू टेक दैट बेनिफिट, तो हाउ वी कैन सी दैट वन टू? हरे कृष्णा. सॉरी प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन ठीक से समझा नहीं है, बट आर यू सेइंग कि
भगवान के पास कुछ मांगना, इज इट कर्मा कांड और नॉट कर्मा कांड? इज दैट द क्वेश्चन? या प्रभु, बिकॉज प्रभु जी आपने एक पॉइंट वहां पे रेस किया था जिसमें आपने कहा था कि स्टिल वी आर सेटिस्फाइंग द कृष्णा, और हम भगवान के पास जाते स्टिल अंडर द पाप पुण्य में आ रहा है प्रभु। सो वो अंडरस्टैंड नहीं हुआ प्रभु, हाउ इट्स कम इन द पाप पुण्य में। ओके, सो पाप का डेफिनेशन तो क्लियर है, व्हाट इज अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स, जो हम लोग को बताया गया है नहीं करना, उसको अगर हम करते हैं, और या तो जो हमको बताया है कि करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते, तो दोनों के तरीके से ये पाप बन जाता है। पर इसके अलावा फिर या तो पुण्य कर्म है या तो अकर्म है। तो पुण्य कर्म वो है कि आप कुछ कर्म करते हो फॉर योर ओन पर्सनल बेनिफिट, तो वो पुण्य कर्म हो गए। तो या तो भगवान से भी हम लोग अगर कुछ मांगते भी है, ओके, पर वो हमारे लिए मांगते हैं, तो भी वो पुण्य कर्म ही हो गया। समझो अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, और कार्तिक के महीने में कार्तिक महात्म्य बताता है कि हमें जो भी हम कुछ करते हैं उससे 1000 गुना हमें फल मिलता है। तो अगर हम दान करेंगे लोगों को, लेट से कि भाई मैंने 1000 रुपया इस्कॉन टेम्पल में दे दिया, स्पेसिफिकली कार्तिक महीने में, ओके, मैं बाकी के महीने में नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये 1:1 के रेशियो में भगवान देते हैं, तो छोड़ दो ना, उससे अच्छा 1000 रुपया मैं कार्तिक में महीने में देता हूं मैं, तो उससे मुझे 1,00,000 रुपया मिलेगा। तो विथ दिस intention, when I donate, even if I'm donating for a Krishna temple, still it is punya karma only. Why? Because the center of the decision is not Krishna. The center of the decision is you yourself. When you take a decision and you perform that action for some benefit which comes back to you, then it is not a karma, it is punya karma. हाँ, फिर अभी उसमें एक ये हो सकता है कि भाई हाँ, हमको बोलेंगे कि भाई कृष्णा 95% तू ले, लेकिन 5% तो दे दे, मेरा कमीशन तो कम से कम। तो अगर वैसा होता है तो मे बी द डिग्री कुड बी डिफरेंट, बट द पॉइंट इज स्टिल कृष्णा इज नॉट 100% इन द सेंटर. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू पुट our one of our feet on the same stone as Krishna is saying कि भाई 5% तो मुझे जगह देते थोड़ी. तो that is not a karma, which is not bhakti. But what is the benefit we are getting, that we should see. Okay, so आपने ये वर्ष तो 100 टाइम्स सुना रहेगा, अकामो वा सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, कि आप कुछ भी हो, या तो आपको कुछ भी काम की इच्छा नहीं हो, या सारे डिजायर्स हो आपके पास, या आपको कुछ मोक्ष की डिजायर हो, इन एवरी केस यू शुड गो टू कृष्णा ओनली. व्हाई? बिकॉज कृष्णा हमें हमारी डिजायर सिर्फ फुलफिल नहीं करता, हमारी डिजायर की करने की जो मेंटालिटी होती है उसको ही वो निकाल देते हैं. तो कभी कभी क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशंस में प्रमोशन जो होता है वो काफी लेट मिलता है. तो एक आदमी कोई अगर 3 साल 4 साल के बाद उसको प्रमोशन मिलता है, तो फिर बाद में क्या होता है कि उसकी जो प्रमोशन की इच्छा होती है ना, वही निकल जाती है. तो बाद में वो कभी प्रमोशन मांगता ही नहीं, सोचता भी नहीं. तो ये ऐसे हो जाता है, भगवान के पास मांगते मांगते और वो देते देते हम लोग इतना टाइम लग जाता है, हम लोग इतने थक जाते हैं कि बाद में भगवान बोलते कि ठीक है अभी ले ले, अभी बाद में, इसके बाद यू विल नॉट वांट टू डिजायर एनीथिंग फ्रॉम मी, ऐसा. तो मांगना तो भगवान के पास ही चाहिए. वी आर हाउस होल्डर्स, वी हैव मटीरियल बॉडीज टू, एंड वी आर ग्रेजुएटिंग. हम लोग अभी भी स्कूल कॉलेज में ही, हम लोग अभी अपने ग्रेजुएशन अपना हुआ नहीं है डिवोशनल सर्विस में. तो मांगने की आदत तो जाएगी नहीं, मांगने की जरूरतें भी कम नहीं होगी हमारी, तो मांगना तो पड़ेगा ही. बट मांगते हैं तो ऐसे उनसे मांगो जो हमारी मांगने की इच्छा भी निकाल सकता है और दे भी सकता है. तो भगवान से मांगने का मतलब पुण्य कर्म है ही वो, या भगवान यानी भले टेम्पल या भगवान के लिए कुछ करें, बट फिर भी विद द मोटिव एज
satisfying our own self, even 1% भी होगा तो भी वो पुण्य कर्म में आता है. Degree could be different, but it is still पुण्य कर्म. It is not 100% pure भक्ति. जैसे भक्ति के लैडर पे भक्ति रसामृत सिंधु में अलग अलग स्तर दिए हुए हैं ना, तो उसमें दिस इज नॉट एट द हाईएस्ट लेवल, एंड डेफिनेटली वी विल टेक एजेस एंड एजेस टू रीच एट द हाईएस्ट लेवल, बट डेफिनेटली टेक्निकली आल्सो इट इज नॉट एट द हाईएस्ट लेवल. हरे कृष्णा. इज दैट ओके प्रभु? Yeah, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much for giving me this opportunity. Many dandavats to Gopi Manor Prabhuji, Uddhav Prishta Prabhuji, all my senior devotees, all my Shiksha Gurus. Thank you so much. You have been Shiksha Gurus for so many of us also. Dandavats to you us. प्रभु वो शिक्षा के पहले अ ये वर्ड डाल देना प्रभु. अशिक्षा गुरु. Humility. Yeah, दिखावा. Anyway, thank you so much प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु anything else प्रभु? I will just request, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं. वी विल प्रभु जी को और भी सेवा होगा तो विल रिलीव हिम एंड वी विल कंटिन्यू आवर बैलेंस सेशन. सत्यराज प्रभु, सूरत माधव प्रभु, just wanted you all to put on your cameras for a couple of minutes because शायद प्रभु जी नाम से शायद नहीं पहचान पाएंगे, तो एटलीस्ट आप लोग जो है, आई थिंक इफ यू पुट ऑन द कैमरास, प्रभु विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एवरीबॉडी, मोस्ट ऑफ यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सूरत माधव प्रभु की जय. काफी दिन के बाद देख रहा हूँ प्रभु आप. जय. आहा. सत्यराज प्रभु की जय हो. हरे कृष्णा. प्रदीप प्रभु जय. थैंक यू प्रभु. चलो प्रणाम. दंडवत प्रणाम प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. जय. Nice to see you all प्रभु. Thank you so much. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. आपको भी बहुत दिन के बाद दिखा प्रभु. बहुत पहले जब क्लास होता, अभी मैं तो छोड़ के आया 1 साल हुआ, पर इसके पहले मैंने आपको करेक्ट. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. Very nice. After a long. Very nice. Very scholarly. Hare Krishna. Wonderful. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you, Subal. Thank you very much for giving us time and such a wonderful session with lot of technical details, lot of technical names and technical analysis on this 2 shlokas. Thank you very much. We had a wonderful session. So we are grateful to you, Prabhu, and we'd like to we'd like to thank you from all of the members present in the group. Yeah, okay, we will continue with this session. So Prabhu, you can thank you. We have Prabhupada Lilamrita and then we'll say some prayers. So we'll continue for some time. Thank you. Subal. Thank you very much. And we expect that you will keep us giving some more time in future, Prabhu. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna's mercy. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. So, yeah. So, I was expecting, well, there will be a lot of questions, but nice. Prabhu had a nice session. तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं निकला, बट इट वाज मतलब बहुत अच्छा सेशन रहा. प्रभु ने बहुत ही टेक्निकल चीजें बताई अपने को, बुद्धि योग क्या है और
जो निमेश अनिमेश ये क्या है, तो बहुत सा चीज मतलब जो था नया था हमारे लिए। तो प्रभु जी को हम लोग और भी बीच बीच में ऐसे बुलाते रहेंगे हम लोग। तो भगवत गीता के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, 1:20 और है। विल कंटिन्यू विद प्रभुपाद लीलामृता। हम लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। तो टुडे हु इज डूइंग दैट सेवा? प्रभुपाद लीलामृत। सॉरी प्रभु, समीर प्रभु। समीर प्रभु, ओके। ओके, या ओके। भाई बोल रही है आज सब राज्य वाले हैं आज। राज्य सेशन है आज। ओके, या समीर प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। या यू कैन टेक द प्रभुपाद लीलामृता। ओके प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।